Hi everyone, again welcome to all of you in the today's videos. In today's videos, I am discussing about arithmetic progressions, sequence and series. In 9.2 exercise, mostly questions I have done like proving questions and formula based questions. Given the any progression, then find the nth term and this terms, etc. etc. But in the last, arithmetic mean is also given in this exercise. So what is the relation between arithmetic mean and geometrical mean? This is the secondary option, but primary this is what is the basic meaning of arithmetic mean. So before this class I have discussed already. There are two numbers given a and b. Then find the arithmetic mean is equal to what? Then find the arithmetic mean is equal to what? Like arithmetic mean. Okay. So if two terms are given like a and b, तो a और b का मीन क्या होगा? सपोज m, तो a कॉमा m कॉमा b are in an AP. So if three terms are in AP, so apply the arithmetic progressions conditions like common difference are same between two terms. So apply this condition and write the in equilibrium form. Like there are three terms, तो common difference को equilibrium में करने के लिए क्या करेंगे? m minus a is equal to b minus m because common difference are same. तो second term minus first term, third term minus second term. Now m transferred to m is equal to b plus a. So here mm to m is equal to a plus b, and then lastly m, what is m? Arithmetic mean. Arithmetic mean is equal to a plus b by 2. Okay children, so use this formula in exercise 9.2 question number 15. Question number 15. If this is the am between a and b, then find the value of n. Then find the value of n. Okay. So apply करिए. Question number 15. We know that arithmetic mean is equal to a plus b by 2. Okay children, a plus b by 2. But in this questions, a to the power n plus b to the power n and total upon a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1. A to the power n minus 1 and b to the power n minus 1 is equal to the value of am. Value of am is what? A plus b by 2. Then find the value of n. तो n is here power form. तो पावर से हमको टैली करना है किसी बेस को, तभी हम n की वैल्यू फाइंड आउट करने पाएंगे. तो हमने इस कंडीशंस को इसके इक्वल कर दिया बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस. हमारे पास a b बेस है, तो कैलकुलेशंस में हमारी कहीं ना कहीं हेल्प होगी. तो फाइनली कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे? 2a to the power n plus 2b to the power n is equal to again a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1 total bracket a plus b. Okay, so this portion we can write
2a to the power n plus 2b to the power n as usual, but in these conditions open the bracket and must respectively multiply by a and b. So here a multiply by this part, okay. So इसके ऊपर पावर 1 क्या होती है, अंडरस्टूड होती है। तो a को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a टू द पावर -1 प्लस 1 मिलके कैंसिल होके क्या बन जाएगा, a टू द पावर n सिंपली, प्लस अगेन a को b से मल्टीप्लाई करेंगे a b टू द पावर n माइनस 1, प्लस सिमिलरली b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a टू द पावर n माइनस 1 इंटू b, बट प्लस b to the power n multiply by this again -1 plus 1 cancel b to the power n, ओके। सो इस तरीके से बेनिफिट क्या होगा हमारे पास कि a to the power n b to the power n को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। सो 2a to the power n है तो 2a to the power n minus a to the power n plus 2b to the power n minus b to the power n is equal to, जो वैल्यू बची इसको रिमेनिंग नोट करते हैं, a b की पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 1 इंटू b, ओके। देन 2a to the power n minus a to the power n means a to the power n simply plus b to the power n remain simply. Here is equal to a b to the power n minus 1 plus a n minus 1 into b. अब इस क्वेश्चन में हमको क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में सिंपली हमें क्या करना चाहिए कि इन दिस ब्रैकेट a to the power n, here a to the power n again, ओके। तो हम क्या करना चाहें कि एक टर्म को इससे और दूसरे टर्म को इससे पेयर बनाएं। अब पेयर बनाना सुटेबल किससे होगा, a to the power n minus 1 और सिंपली a। तो अगर हम a to the power n को a के पास लेंगे तो हमारे लिए a to the power n कॉमन लेना इजी हो जाएगा, ओके। सो a to the power n minus 1 के पास ले जाते हैं, b to the power n minus 1 के पास ले जाते हैं, ओके। सो देखते हैं क्या होगा। तो सिंपली a to the power n minus a to the power n minus 1 into b is equal to a b to the power n minus 1 ट्रांसफर करते हैं माइनस b to the power n, ओके। तो हमारे लिए बेनिफिशियल क्या हो जाएगा, बाय हुक बाय क्रूक हम a to the power n कॉमन लें अकॉर्डिंग टू फैक्टराइजेशन में जब अंडर रूट के क्वेश्चन आते थे उसमें होता था। तो हमने क्या कर दिया, a की पावर n कॉमन लिया, जैसे कॉमन लेंगे तो a to the power n की जगह 1 हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने की मीनिंग होती है डिवाइड करके लिखना। तो a to the power n minus 1 से आपने a की पावर n कॉमन लिया, ट्रांसफर करके ले जाएंगे तो प्लस n माइनस n कैंसिल हो जाएगा, लाइक a to the power n minus 1 into b में से आपने a की पावर n कॉमन लिया तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर n माइनस 1, ये पॉजिटिव n है, ऊपर जाएगा माइनस n हो जाएगा बिकॉज बेस सेम है, b प्रोडक्ट में है, प्लस माइनस कैंसिल, तो a की पावर a इनवर्स इनटू b, तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, b टू द पावर सॉरी b अपॉन a सिंपली। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली हम इसको अगर क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू होगी क्या होगी, a इनवर्स b इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ से क्या ले लें, b की पावर n कॉमन लें, जैसे b की पावर n कॉमन लेंगे तो a b की पावर n माइनस 1 है, अगेन यहाँ पर कंडीशन क्या बच जाएगी, a प्लस n माइनस n कैंसिल होगा, a b की पावर माइनस 1 माइनस b की पावर n टोटल कॉमन हो गया 1। अब ये चीज किसी न किसी फॉर्म में इक्वलाइज होगी, कैसे होगी, a टू द पावर n in the bracket 1 minus this is b upon a is equal to b की पावर n, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a by b माइनस 1, एलसीएम लेंगे a की पावर, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर n अपॉन b की पावर n इज इक्वल टू, ये अपॉन में आ जाएगा a माइनस b माइनस 1 टोटल अपॉन 1 माइनस बी माइनस ए, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये टर्म इसके साथ आ जाएगा, ये टर्म इसके साथ आ जाएगा, बट हमारे लिए यूजफुल क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करना। सो a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n इज इक्वल टू टेकिंग द एलसीएम अगेन,
तो ये हो जाएगा b, सो a माइनस बी टोटल अपॉन एलसीएम a, सो a माइनस बी अगेन। ओके, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी अपॉन बी इंटू a अपॉन a माइनस बी, a माइनस बी कैंसिल आउट, तो क्या बचा हमारे पास a बाई बी। सिंपली a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n इज इक्वल टू a बाई b एंड a upon b whole to the power n is equal to a by b whole to the power 1। अंडरस्टूड, बेस आर सेम, जब बेस हमारे पास सेम होगा तो n की वैल्यू क्या टैली हो रही है सर, 1। बेस सेम होगा तो n की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 टैली हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर के बिहाफ पे अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चन एंड ज्योमेट्रिकल मीन से रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। तो देखा जाए ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो 9.2 क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्व रिलेशन बिटवीन ओनली रिलेशन टू टर्म्स लाइक अर्थमेटिक मीन। ओके, सिमिलरली ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस में भी इसी तरह का फॉर्मूला बनेगा, बट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस के फॉर्मूले को फर्स्ट टाइम आपको बता दें उसके बाद ही। एंड सिमिलरली इसमें क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP। मीनिंग क्या कह रहा है यहाँ पर कि insert 5 numbers between 8 and 26, 8 and 26, 8 and 26 के बीच में कितने हैं, 5 नंबर इंसर्ट करने हैं, 5 नंबर इंसर्ट करने हैं, A1, A2, A3, A4, A5, 1 2 3 4 5। तो insert 5 numbers between this such that the resulting sequence is an AP। तो जो सीक्वेंस के फॉर्म बनना चाहिए वो क्या है, AP के फॉर्म में बनना चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे बेसिक मीनिंग क्या निकल रही है, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑलरेडी 5 इंसर्टेड था और 2 बिफोर था, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 7 हो गए। अकॉर्डिंग टू पैटर्न फर्स्ट टर्म इज 8 and last term is 26। ओके, बट यहाँ पर क्या है, आपको कॉमन डिफरेंस की नॉलेज नहीं है। कॉमन डिफरेंस में हम a1 माइनस ए, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 लिखेंगे नहीं, बिकॉज दिस नंबर इज अननोन। ओके, तो जब नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो गया, फर्स्ट टर्म गिवन हो गया, लास्ट टर्म गिवन हो गया, तो हम कॉमन डिफरेंस को भी फाइंड कर सकते हैं, और फिर हम लोग अपने सीक्वेंस को इंसर्टेड फॉर्म में लिख भी सकते हैं। ओके, कैसे, लाइक वी नो दैट L is equal to A plus n minus 1 into D, so L is 26, first term 8 and 7 minus 1 and D। okay, so 26 minus 8, 7 minus 1 means 6, D 26 minus 8 means what, 18, so 18 is equal to 6D, then D is equal to 18 by 6 like 3। so common difference भी find हो गया and number of terms भी find हो गए, first term and last term is given। तो अब प्रोग्रेशंस को बनाने में क्या प्रॉब्लम है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के रिजल्टिंग सीक्वेंस को बनाने में क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट टर्म इज ए, तो सेकंड टर्म क्या होना चाहिए, a प्लस डी, देन a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d। तो फर्स्ट टर्म इज a, देन सेकंड टर्म इज a2, a1, a2, a3। ओके, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, a, फिर हमारे पास हो जाएगा ये फर्स्ट टर्म a1 निकलेगा, तो a1 हमसे किससे टैली होगा, a प्लस डी, a1 से टैली होगा। ओके, a प्लस 2d a2 से, a प्लस 3d a1 a2, फर्स्ट टर्म इज a, तो हमारे पास a प्लस d, a प्लस 2d,
तो सीक्वेंस बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर a1 क्या है, a प्लस डी है, a2 a प्लस t2, ये 3 का फॉर्म हो जाएगा, ये 4 का फॉर्म हो जाएगा, ये 5 का फॉर्म हो जाएगा। तो हमारा रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या निकलेगा, फर्स्ट टर्म इज 8 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3, 8 3 11 एंड अगेन 3 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, 3, 3 2 6, 8 प्लस 6 मीन्स 14, आई थिंक 3 3 का डिफरेंस आ रहा है, ओके। 8 प्लस 3 3 9, 9 and 8 17, 11 14 17 then 20 and 23 and so on। तो इस तरीके से किसी भी अर्थमेटिक नंबर के बीच में या किसी दो नंबर के बीच में अगर कोई नंबर इंसर्टेड फॉर्म में है तो हम लोग उसको इस फॉर्मूले के भी थ्रू सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 14 जैसे हमारे पास दिया हुआ है, ओके। सो चिल्ड्रन, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन firstly attempt yourself, otherwise in the next class some doubts have clear in front of you, okay children, thank you so much।